गुड आफ्टरनून देवेशना, गुड आफ्टरनून आदित्य। कैसे हो तुम लोग भाई? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे चल रहा है पढ़ाई तुम लोग का? पढ़ाई करते हो कि नहीं बड़ा तुम लोग सब लोग? बेटा थोड़ा सा काम नहीं चलेगा? गुड। जय जिनेन्द्र। केम છે તારી તબિયત મેડમ? ગુડ આફ્ટરનૂન લીરય। બસ હું તો ભાઈ લેક્ચર લઈને જલસા પડાવતો। નિવેદિતાના ઘરે ગઈ હતી રોકાવા માટે। ચલો રેડી। So in last lecture we have started with the new term which was been called to be as integration by parts. And when we have started studying about the term integration by parts, with respect to integration by parts, we have learned that whenever there exists relation of multiplication between the two different families, at that time we can solve the given sum by using integration by parts। बोला था मैंने ऐसा, है ना? So for integration by parts, we have studied the formula to be as the integral of uv dx, which is equal to u integral of v dx minus the whole integral of v dx into derivative of u the whole dx into derivative of u the whole dx बराबर है। ये जो बड़ा सा जो इंटीग्रल है दैट इज रेड टू बी एज the whole integral, it is read to be as the whole integral। जो फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म, उसका हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं मैडम, या तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते मैडम।
बट जो सेकेंड टर्म है बेटा, सेकेंड टर्म उसका सिर्फ इंटीग्रल ही हो सकता है, बराबर है। और तुम्हें स्ट्रिक्टली बेटा क्या याद रखना है कि यू कैन मेक द यूज ऑफ दिस रूल बेटा, है ना। You can make the use of this rule if and only if and only if there is a relation of the multiplication between the two different families between the two different families, है ना। and two families में कौन कौन आ सकता है बेटा? It can be logarithmic, algebraic, exponential, logarithmic, exponential बेटा। समझ में आया सबको? And now, in order to decide whether which term is a U or which term is a V, again, which term is a U or which term is a V, always you have to solve that given sum by using a dash rule. By using a dash rule. The sum it can be solved by using a lay rule. Remember, in which L stands for logarithmic, A stands for algebraic, and E stands for exponential. Chalo. And now let me start with examples. Away examples. Integral of integral of x into integral of x into e raised to x dx. अब सब लोग बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रल ऑफ x into e raised to x dx. तो चलो मुझे बताओ फटाफट, in this given integrand there are how many terms? फटाफट रिप्लाई करो। There are two terms, and between the two terms, there is a relation of multiplication between the two different families. Which two families are involved? One is algebraic and other one is exponential. According to the lay rule, you have to follow the sequence. You have to follow the sequence. But according to the lay rule, tell me which term comes first? है ना, algebraic पहले आएगा कि exponential वाला टर्म पहले आएगा? algebraic वाला जो टर्म है वो पहले आएगा। That will be considered to be as u, and जो second term है exponential वाला जो टर्म है that will be considered to be as v. अब ये यहाँ पे integral of
x square into log x dx, integral of x square into log x dx. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चल भाई, एकदम इजी। द टू टर्म्स आर बड़ा एल्जेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, वेरी गुड बड़ा। अब मुझे ये बता, आदित्य रॉन्ग है बड़ा, एक्सपोनेंशियल नहीं है बड़ा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक वाला टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू द बड़ा ले रूल, विच टर्म कम फर्स्ट? पहले कौन आएगा? चलो सीक्वेंस के हिसाब से पहले कौन आएगा? रॉन्ग। अरे रॉन्ग भाई, हरे कृष्णा। ये रहा बड़ा, ले रूल फॉलो करो, ले। लॉगरिथमिक पहले आता है कि बड़ा एल्जेब्रिक टर्म पहले आता है? देखो सीक्वेंस, देखो बड़ा सीक्वेंस देखो, मिस्टेक मत करो सब लोग बड़ा। आकांक्षा, लॉग वाला टर्म बड़ा पहले आएगा ना, तो जो टर्म बड़ा पहले आएगा वो यू होगा, और जो टर्म बड़ा सेकेंड आएगा वो वी होगा। और चल, अब मिस्टेक मत करना। इंटीग्रल ऑफ फोर रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। द टू टर्म्स आर बड़ा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, बराबर है। तो बड़ा अकॉर्डिंग टू द ले रूल, चल बताओ पहले कौन आएगा? तो लॉग एक्स वाला टर्म अगर पहले आएगा बड़ा, this will be considered to be as u, and 4 raised to x, it will be considered to be as v. चलो पहुंचिए बड़ा, सब आइडिया मिला तुम लोग को कि सम कैसे सॉल्व करना है? तो एक एक्स्ट्रा सम सॉल्व करते हैं। फिर तुम लोग को बड़ा धीरे धीरे पता चलेगा कि सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सम सॉल्व करते हैं। राइट डाउन एक्स्ट्रा सम होगा, एक्स्ट्रा सम। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, integrate the following with respect to x. This will result by into x into p raised to x dx.
सब लोग है ना बड़ा ध्यान से ध्यान से चेक करो, समझो, कुछ नहीं समझा तो बड़ा मुझे डाउट पूछो। थर्ड सम से सब फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। देख लेट let I is equal to let I is equal to integral of x into e raised to x dx. Let I is equal to integral of x into e raised to x dx. अब ये देखो in this given sum there are two terms. Between the two terms there is the relation of multiplication between the two different families. Therefore, sum will be solved by using integration by parts, and sum, since it will be solved by using integration by parts, so according to the ले rule, पहले कौन आएगा मैडम? बराबर है। एंड फिर सेकेंड जो टर्म आएगा वो आएगा एक्सपोनेंशियल टर्म, बराबर। फिर देख लो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ u v dx is equal to u integral of v dx minus the whole integral of v dx into a d by dx of u the whole dx, बराबर। कंपल्सरी ये फॉर्मूला सब लोग को लिखना ही है, समझा? कंपल्सरी ये फॉर्मूला सब लोग को लिखना ही है। विदाउट राइटिंग बड़ा दिस फॉर्मूला कोई भी मेरा स्टूडेंट बड़ा सम सॉल्व नहीं करेगा। चलो चलो यहाँ तक पहुंचिए सब लोग। Therefore, substitute the value of u and v, ये हो जाएगा बड़ा। Therefore, integral of x into e raised to x dx, which is equal to x integral of v, that is e raised to x dx minus whole integral of v कौन है बेटा? e raised to x dx into डेरिवेटिव ऑफ u कौन है मैडम? x तो होल dx, बराबर। अब ये देखो सब लोग बड़ा 1 मिनट के लिए खाली पेन नीचे रख दो प्लीज। सब लोग बड़ा 1 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो और ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैडम देयर इज ओरिजिनल टर्म
एंड दैट ओरिजिनल टर्म बड़ा इज आई। बराबर, अब सब लोग बराबर ध्यान से सुनो बड़ा, जिसके पास बड़ा ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स और जिसके पास बड़ा इंटीग्रल है ई रेस टू एक्स बड़ा, सिर्फ वही टर्म बड़ा चेंज होने वाला है, सिर्फ वही टर्म बड़ा चेंज हो सकता है। मान लो कि जिसके पास बड़ा कुछ भी नहीं है ना, जिसके पास बड़ा सब में कुछ भी नहीं है, वो टर्म बड़ा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें बड़ा कोई चेंजेस नहीं होंगे। जिसके पास बड़ा डी बाई डी एक्स है या फिर जिसके पास बड़ा